حسن بن صبا تو جیسے قلعہ وسم کوہ کو بھول ہی گیا تھا، وہ کبھی پوچھ لیتا تھا کہ وسم کوہ کا محاصرہ ٹوٹا کہ نہیں، اسے ہر بار اچھی خبر سنائی جاتی تھی کہ محاصرہ ٹوٹا بھی نہیں اور کامیاب بھی نہیں ہوا اور مسلمانوں کے لشکر کا جانی نقصان مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ محاصرہ کامیاب نہیں ہوگا، حسن بن صبا ہر بار یہی کہتا تھا۔ ایک دن یہ تینوں زخمی قلعہ علموت پہنچ گئے اور انہیں فوراً حسن بن صبا کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا، یا امام، ہم دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے سنایا کہ ان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے اور وہ سلجوقی فوج کی گھڑسوار کمک کو اپنی فوج سمجھ بیٹھے تھے اور سلجوقیوں کی باتوں میں آ گئے۔ یا شیخ الجبل، ایک مشیر نے کہا، اگر ہم پہلے ہی محاصرے پر حملہ کر دیتے تو آج یہ خبر نہ سننا پڑتی، اب بھی کچھ نہیں گیا، ہمیں اسی وقت کوچ کر جانا چاہیے اور ہم قلعہ چھڑا لیں گے۔ میں اپنی طاقت ضائع نہیں کروں گا۔ حسن بن صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پاس ایسی فوج ہے ہی نہیں جس سے ہم حملہ کریں، نہ میں ایسی فوج بناؤں گا۔ ہمارا ہر آدمی لڑ سکتا ہے لیکن ہم فوج کی طرح نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ہر فدائی کے پاس ایک خنجر یا ایک چھری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ابھی 14 قلعے ہیں، یہ کافی ہیں۔ سلجوقی سالار نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا کہ وہ قلعہ ملاز خان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور نہ کبھی توجہ دوں گا۔ تو کیا ہم اس نقصان کو برداشت کر لیں گے یا امام؟ ایک اور مشیر نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک قلعے کے بدلے قلعہ ہی لیں گے، حسن بن صبا نے کہا، ہم اس قلعے کی پوری قیمت سلجوقیوں سے وصول کر لیں گے اور وسم کوہ میں ہمارا جو مال و دولت گیا ہے وہ بھی ہم پورا کر لیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو اور اسی وقت اس پر عمل شروع ہو جائے۔ اب اپنے گروہ رے اور شاہدر والی شاہراہ پر بھیج دو۔ وسم کوہ کی قیمت مسلمان قافلوں سے وصول کرو اور وہ جس خزانے پر قابض ہو گئے ہیں اس سے دوگنا خزانہ ان سے پورا کرو۔ ان شہروں کے اندر کسی امیر کبیر تاجر یا جاگیردار کے گھر ڈاکہ ڈالنا پڑے تو یہ کام بھی کر گزرو، مسلمانوں کی قتل و غارت اور تیز کر دو۔ حسن بن صبا کے دماغ کو اس کے وہ مشیر اور مصاحب بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بڑ نہیں ہانکا کرتا تھا اور کوئی بات غصے کی حالت میں یا بلا سوچے سمجھے زبان پر نہیں لاتا۔ اس کی فطرت میں سوائے ابلیسیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے صحیح فیصلے پر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اس کی فطرت اس کے دماغ کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس نے رے اور شاہ در کے ارد گرد کے علاقوں کو رہزنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے اس لیے منتخب کیا تھا کہ رے تو مسلمانوں کی اکثریت کا شہر تھا اور اس شہر کا الگ حاکم یا امیر تھا۔ شاہ در کی اہمیت یہ تھی کہ اس شہر میں تقریباً آدھی آبادی مسلمانوں کی تھی اور یہ مسلمان باطنیوں سے باہم متصادم رہتے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ در میں اس کا استاد احمد بن عطاش رہتا تھا اور حسن بن صبا نے سفلی عمل اور ابلیسیت کی تربیت یہیں سے حاصل کی تھی اور اس کی امامت کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلجوقی سلطان کی نظر شاہ در پر لگی رہتی ہے اور کسی بھی روز شاہ در پر سلجوقی حملہ کر دیں گے۔ ابو جندل پیشہ ور ڈاکو تھا اور اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس کے گروہ کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہا تھا لیکن وہ پھر بھی انتظامات کر لیتا تھا۔ وسم کوہ کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی اس میں انتظامات کر لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہاں اندر اور باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں اور ان لاشوں میں ابھی تک زخمی بے ہوش پڑے تھے جنہیں مرا ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ شہر کی عورتیں اور بچے ان لاشوں کو پہچانتے پھر رہے تھے۔ سلجوقی فوج کے آدمی بھی اپنے سالار کے حکم کے مطابق ان لاشوں میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے ہی والا تھا جب شمشیر ابلک ایک گھوڑے پر سوار ان بکھری ہوئی لاشوں کے ارد گرد یوں پھر رہا تھا جیسے نگرانی کر رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کیا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا کچھ آگے ایک ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں اس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس کے چاروں سپاہی ایک ایک کر کے مختلف سمتوں سے نکلے اور اسی طرح دور جا کر گھوڑے دوڑائے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو جندل پہلے موجود تھا۔ اس کی دونوں بھتیجیاں اس کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ 2 کی بجائے 3 فالتو گھوڑے تھے۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑائی میں جو گھوڑ سوار مارے گئے تھے ان کے گھوڑے میدان جنگ سے بھاگ کر ارد گرد کے جنگل میں چلے گئے تھے۔ سالار اور ایزی کے نوجوان گھوڑوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے لیکن ابو جندل نے اس سے پہلے ہی 3 گھوڑے پکڑ لیے اور اس جگہ لے گیا تھا جو جگہ ان سب نے مقرر کی تھی۔ ابو جندل نے شمشیر ابلک سے کہا تھا کہ 2 کمان اور تیروں کے 4-5 ترکش بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ چاروں سپاہی تجربے کار تیرانداز تھے۔ وہ 2 کمان اور 5-7 ترکش ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں اور برچیا بھی ایک گھوڑے پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو بہت دنوں کے لیے کافی تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔
वो जून ही इकट्ठे हुए अपनी मंजिल को चल पड़े। इन्होंने घोड़ों की रफ्तार खासी तेज रखी। वो इस कोशिश में थे कि सुबह होने तक इतनी दूर निकल जाएं कि ताक़ुब का कोई खतरा न रहे। ताक़ुब का खतरा बहुत ही कम था, क्योंकि ये सब जिस तरह एक एक करके वसम कोह से निकले थे, इन्हें किसी ने देखा नहीं था। वो जब इकट्ठे हुए थे तो उन पर शाम ने अपना धंधिला पर्दा डाल दिया था, जो बड़ी तेजी से रात की तारीकी जैसा सियाह हो गया था। उनके पास 3-4 मशलें भी थीं, जो इन्होंने जलाई नहीं, क्योंकि मशलों के शोले दूर से उनकी निशानदही कर सकते थे। इन मशलों की ज़रूरत मंजिल पर पेश आनी थी। शुमशीराबलक, रास्ते में अबू जनदल ने कहा, अगर तुम्हें मेरी नीयत पर शक है तो मेरी तलवार अपने पास रख लो। ये दिल में बिठा लो कि हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। हमारा अंजाम अच्छा होगा या बुरा, वो हमसे किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। नहीं मेरे हमसफ़र, शमशीर इब्लिक ने कहा, हम मुसलमान हैं। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ दिल में ज़रा सा भी शक व शुबा या कदूरत रखेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, और अगर पहुंच गए तो इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक बात और कहूँगा शमशीर, अबू जंदल ने कहा, जिस तरह तुमने दिल से शक व शुबा और कदूरत निकाल दी है, उसी तरह दिल से ये भी निकाल दो कि तुम मुसलमान हो और मेरा मजहब या अकीदा कुछ और है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं किसी मजबूरी के तहत हसन बिन सबा के पैरोकार बना था। मैं उसे धोखा देता रहा हूँ। तुम भी मजहब की इस लकीर को मिटा डालो। अगर ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं तो मुझे भी मुसलमान समझ लो। हाँ अबू जनदल, शमशीर इब्लिक ने कहा, ये मेरे लिए मुश्किल है कि मजहब की लकीरों को मिटा डालो। इससे ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं तुम्हें मुसलमान समझूं और तुम भी अपने आप को दिल्ली तौर पर मुसलमान समझते रहो। अपने आप को फरेब ना दो शमशीर, अबू जनदल ने कहा, तुमने शायद अभी महसूस नहीं किया कि तुम अब नाम के मुसलमान रह गए हो। दिल पर जब ज़र जवाहरात का और खूबसूरत औरत का कब्जा हो जाता है तो दिल में मजहब बराए नाम पुराने जख्म के निशान की तरह बाकी रह जाता है। अब अपने आप को ये धोखा ना दो कि तुम वो मुसलमान रह गए हो जो वसम कोह की रवानगी से पहले हुआ करते थे। मैंने तुम्हें इस रात को भी कहा था जब हम पहले मिले थे कि हसन बिन सबा ने जो जन्नत बनाई है वो आर्जी है। ये शख्स मर जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जन्नत भी उजड़ जाएगी, और वो जन्नत जिसका वादा तुम्हें खुदा ने दिया है वो आसमानों में है, और मालूम नहीं कि है भी या नहीं। जन्नत वही होती है जो इंसान अपने हाथों बनाता है। मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना दूंगा। शमशीर इब्लिक लश्करी था, या उसे मुजाहिद कह लें। आलम दीन नहीं था कि ये फ़लसफ़ा समझ सकता कि इंसान माल और मजहब में से एक ही चीज़ का पुजारी हो सकता है। मुसलमान के लिए मालदार होना गुनाह नहीं, लेकिन दिल में माल व दौलत का लालच रखना ऐसी गुमराही है कि इंसान सिरात मुस्तकीम से हट जाता है। वो अपने मजहब को भी दिल में जिंदा रखना चाहता था, लेकिन ये हकीकत कबूल नहीं कर रहा था कि दिल में जब ज़र व जवाहरात की चमक आ जाती है तो इस दिल में दीन की शमा बुझ जाया करती है। शमशीर इब्लिक मसरूर और मुतमईन चला जा रहा था। फासले कम हो रहे थे और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो दुनिया ही बदली हुई थी। हरा भरा जंगल और सरसब्ज टेकरियां दूर पीछे रह गई थीं, और वो ऐसे इलाके में दाखिल हो गए थे जहां दीवारों की तरह छोटी बड़ी पहाड़ियां और चट्टानें खड़ी थीं। उनका रंग कहीं सलीटी, कहीं मटियाला और कहीं स्याही माइल था। उनकी शक्लें भी अजीब व गरीब थीं। अब्बू जंदल इस इलाके से वाकिफ था और इसमें से गुजरने का रास्ता भी जानता था। शमशीर इब्लिक और इसके सिपाहियों के लिए ये इलाका और इसके खदोखाल डरावनी से थे। कहीं कहीं एक आध दरख्त खड़ा नजर आता था, वरना वहाँ घास की पत्ती भी नजर नहीं आती थी। ये तो जन्नत और बदरूहों का देश मालूम होता है, शुमशीराबलक ने अबू जनदल से कहा। मैंने ऐसा भदा और डरावना इलाका पहले कभी नहीं देखा था। हाँ शमशीर, अब्बू जंदल ने कहा, लोगों में यही मशहूर है कि इस इलाके में बदरूहें और चुड़ैलें और जन्नत रहते हैं। मालूम नहीं ये कहाँ तक सच है, लेकिन इसके अंदर जहरीली चीज़ें रहती हैं। अब हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए था। ताक़ुब का खतरा ख़त्म हो गया है। ये सारा इलाका पथरीला था। इसके अंदर जाकर अबू जनदल ने एक जगह देखी जो ज़रा हमवार थी और वहाँ पत्थर भी कम थे। वहाँ 2 दरख्त भी थे जिनकी सिर्फ शाखें थीं, पता एक भी नहीं था। इन्होंने घोड़े इन 2 दरख्तों के साथ बांध दिए और अलग हटकर बैठ गए। रात भर के जागे हुए मुसाफिर ज़मीन पर लेट गए और कुछ ही देर बाद गहरी नींद सो गए। अचानक एक घोड़ा बड़ी जोर से हनहनाया और फौरन बाद तमाम घोड़े इस तरह हनहनाने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आन पड़ा हो। इनके सवार जाग उठे और देखा कि घोड़े रिसियां चुराने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी उछल कूद से पता चलता था कि इन्होंने कुछ देख लिया है। वो सब दौड़कर गए और देखा 10-12 कदम दूर एक सियाह काला नाग आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था।
सांप को देखकर हर जानवर उसी तरह डर जाता और भाग उठता है। बाज घोड़े तो सांप को देखकर चलते चलते रुक जाते और इस तरह कांपने लगते हैं कि अभी गिर पड़ेंगे। अब्बू जंदल ने एक कमान उठाई और उसमें तीर डाला। सांप पर तीर चलाया लेकिन तीर उसके करीब लगा। सांप को भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो रुक गया और उसने फन फैला दिया और फुंकारने लगा। उससे उसके गुस्से का इजहार होता था। एक सिपाही ने अबू जंदल के हाथ से कमान ले ली और उसमें तीर डालकर चलाया तो सांप के फन के पार हो गया। सांप कुछ देर लौटपोट होता रहा और फिर बेहिस्सू हरकत हो गया। आसमान पर गहरे बादल तो पहले ही मंडला रहे थे, लेकिन इन मुसाफिरों को मालूम न था कि जिस बेआबू गया पहाड़ी के दामन में इन्होंने पड़ाव किया है, इसके पीछे से सियाह काली घटा उठती आ रही है। इधर सांप मारा, इधर बड़ी जोर की गरज सुनाई दी और फिर बिजली, और इसके साथ ही इसकी ऐसी कड़क सुनाई दी जैसे चट्टान टूट फूट गई हो। सबके दिल दहल गए। घोड़े जो सुकून में आ गए थे फिर बदकने लगे। बिजली रह रहकर चमकती और कड़कती थी। यूं मालूम होता था कि बजलियों को इस काले नाग की मौत पर गुस्सा आ गया हो। आसमान बड़ी तेजी से तारीक होने लगा और घटा देखते ही देखते आसमान के खूबसूरत बादलों के टुकड़ों को निगलती आगे ही आगे बढ़ती गई, और जब बारिश शुरू हुई तो लगता था घटा का सीना फट गया हो। ऐसी मूसलाधार बारिश के एक हाथ दूर कुछ नजर नहीं आता था और जल थल हो गया। वहाँ बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब्बू जंदल ने इन्हें बताया कि यहाँ गार है, लेकिन खासा आगे है, जहाँ तक हम इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकेंगे। इतनी देर में ये घटा आगे निकल जाएगी। वहीं खड़े रहे और बारिश के कतरे उन पर इस तरह पड़ते रहे जैसे कोई कंकरियां मार रहा हो। ये सांप किसी की बदरू मालूम होती है, एक सिपाही ने कहा। उसे तीर लगा ही था कि हम पर ये तूफान टूट पड़ा। किसी वहम में ना पड़ो मेरे दोस्तू, अब्बू जंदल ने कहा। मैं इस इलाके में से इतनी बार गुजरा हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा, और यूं लगता है जैसे ये मेरी जिंदगी का रास्ता है। डरो नहीं, बारिश थम जाएगी। मैंने इतनी तेज बारिश पहले कभी नहीं देखी थी, शमशीराबलात ने कहा। शमशीर भाई, अब्बू जंदल ने उसे बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, जैसे वो कोई राज की कोई बात कह रहा हो। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सुन लो कि ये काला सांप और ये काली घटाओं, कड़कती हुई बिजलियां अच्छा शुगुन नहीं। खुदा करे हमारी मुहिम कामयाब हो जाए, लेकिन सफर की इब्तिदा अच्छी नहीं हुई। मैं दुआ करूंगा, शमशीर इब्लिक ने कहा। खुदा हमेशा मेरी दुआ सुन लिया करता है। तुम पहले की बातें करते हो, अब्बू जंदल ने कहा। अब खुदा तुम्हारी नहीं सुनेगा। अब कोई मुसीबत आ पड़े तो मुझे बताओ या खुद इसका मुकाबला करो। तुम खुदा के रास्ते से हट गए हो, अब मेरी तरह जिंदगी गुजारो। 1.5-2 घंटों बाद बारिश थमने लगी तो घटा कुछ तो बिखर गई और बाकी जो थी वो आगे निकल गई। कम होते होते बारिश रोक गई और इन लोगों ने चलने का इरादा किया, लेकिन वहाँ पानी ही पानी जुमा हो गया था। ये जगह कुशादा तो थी, लेकिन 2 चट्टानों के दरमियान होने की वजह से दरिया बन गई थी। सब घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। आगे गए तो जगह तंग होती चली गई, क्योंकि दोनों तरफ ही चट्टानें एक दूसरे के करीब आ गई थीं। वहाँ पानी इस तरह आ रहा था जैसे सैलाबी दरिया हो। पानी का बहाव बड़ा ही तेज था। अबू जंदल ने कहा कि ये पानी गहरा नहीं है कि इसमें कोई डूब जाए, लेकिन घोड़ों के लिए इसमें चलना खासा मुश्किल होगा। घोड़े यूं तो आगे बढ़ते जा रहे थे, पानी का जोर ज्यादा ही होता जा रहा था और नजर ऐसी ही आता था कि घोड़े आगे नहीं जा सकेंगे। लेकिन पानी कम होने लगा और आगे जगह भी जरा खली सी आ गई, जिससे पानी फैल गया और घोड़े निकल गए। ये पथरीला और चट्टाने इलाका खत्म होने ही में नहीं आ रहा था। चट्टानों के दरमियान चलते चलते आधा दिन गुजर गया और आगे जाकर इन 2 चट्टानी पहाड़ियों में जिनके दरमियान वो जा रहे थे, रास्ता ही ना रहा, क्योंकि दोनों पहाड़ियां आगे जाकर मिल गई थीं। अबू जंदल इस रास्ते से वाकिफ था। वो आगे आगे जा रहा था। उसने अपना घोड़ा दाएं तरफ कर ली और पहाड़ी के दामन में चला गया। वहाँ कोई रास्ता नहीं था, लेकिन घोड़े पहाड़ी चढ़ सकते थे। अब्बू जंदल का घोड़ा पहाड़ी चढ़ने लगा, लेकिन सीधा ऊपर जाने की बजाय पहलू के साथ साथ चल रहा था। बाकी घोड़े इसके पीछे पीछे कतार में जा रहे थे। शमशीर इब्लिक और इसके सिपाहियों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो फौज के आदमी थे और फौजी घोड़सवारी की महारत रखते थे, लेकिन ऐसी घोड़सवारी इन्होंने कम ही कभी की थी। पहाड़ी पथरीली थी और घोड़ों के पांव फिसलते थे। ऊपर जाते जाते वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां घोड़ा बमुश्किल पांव रख सकता था। ये इस पहाड़ी का एक हिस्सा था जो उसके सामने था। यूं लगता था जैसे बहुत ऊंची दीवार है और घोड़े इस दीवार पर जा रहे हों, या इस तरह जैसे बाजीगर रशे या तार पर चला करते हैं। किसी घोड़े का पांव जरा सा फिसल जाता तो दाएं या बाएं सवार समेत लुढ़कता हुआ दूर नीचे जा पहुंचता और सवार की हड्डी पसली एक हो जाती। ज्यादा मुश्किल दोनों लड़कियों को पेश आ रही थी।
انہوں نے گھوڑ سواری تو کئی بار کی تھی، لیکن وہ اتنی ماہر نہیں تھیں۔ دائیں بائیں مت دیکھو، ابو جندل نے آگے چلتے ہوئے بلند آواز سے کہا، یہ سمجھو کہ گھوڑے میدان میں چلے جا رہے ہیں، ورنہ ڈر سے کانپتے کانپتے گھوڑے سے گر پڑو گے۔ یوں لگتا تھا جیسے سوار نہیں بلکہ گھوڑے ڈر رہے ہوں، وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور ان کے جسموں کی حرکت بتا رہی تھی کہ گرنے سے ڈر رہے ہیں اور شاید آگے جانے سے انکار ہی کر دیں۔ کسی کا گھوڑا رک جائے تو لگام کو جھٹکا نہ دینا۔ ابو جندل نے ایک اور اعلان کیا، ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدک کر پاؤں دائیں یا بائیں رکھ دے۔ آخر اس پہاڑی کی یہ چوٹی ذرا چوڑی ہونے لگی لیکن اب بھی ہموار نہیں تھی، اس لیے گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے۔ آگے جا کر یہ چوٹی زیادہ چوڑی ہو گئی اور اب گھوڑے دوسری پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ خطرناک حصہ ختم ہو گیا تھا اور اب جہاں گھوڑے چل رہے تھے یہ خاصی چوڑی جگہ تھی اور یہ پچھلا پہاڑ تھا جس کے اوپر جا کر آگے نیچے اترنا تھا۔ یہ قافلہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور ابو جندل نے گھوڑا روک لیا۔ وہاں اوپر اتنی لمبی اور چوڑی جگہ تھی کہ سبھی گھوڑے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے۔ نیچے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آیا، ہرا بھرا جنگل تھا، درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں اور ادے بادل منڈلا رہے تھے۔ مغرب کی طرف سورج کچھ نیچے چلا گیا تھا اور اس کی کرنیں درختوں پر پڑتی تھیں تو بارش کے قطرے چمکتے تھے۔ کسی آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس خوبصورت منظر کے دائیں بائیں ذرا اونچی پہاڑیاں تھیں، لیکن بہت ہی دور دور ان پر بھی سبزہ اور درخت تھے۔ سبحان اللہ، شمشیر ابلک نے بے ساختہ کہا، یہ تو جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس خطے کو کیسا حسن بخشا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا یہ حسن بڑا ہی خطرناک ہے شمشیر بھائی، ابو جندل نے کہا، یہاں سے دیکھنے سے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہی لگتا ہے اور یہ کوسوں دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ شیر پایا جاتا ہے جس پر لمبی لمبی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے دکیلے نہیں بلکہ 8-8، 10-10 کے گروہ میں حملہ کرتے ہیں۔ یہاں اپنی برچیاں اور تلواریں تیار رکھنا۔ اس خطے کے اندر کوئی آبادی نہیں، آبادیاں بہت دور ہیں، یہاں کبھی کوئی شکاری بھی نہیں آیا، اس لیے شیروں کی تعداد بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پہاڑی سے اترنا چڑھنے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ گھوڑے آخر اتر گئے اور اس خوبصورت خطے میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، سورج غروب ہونے کے لیے اوپر تک پہنچنے ہی والا تھا اور ان لوگوں نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہاں کوئی خشک جگہ نظر آتی نہیں تھی، لیکن ابو جندل ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے وہ ذرا سا بھی پریشان نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنے قافلے سے کہا کہ اب دن اور رات کا کھانا ایک ہی بار کھائیں گے اور ایک جگہ مجھے معلوم ہے جہاں ہم رات آرام بھی کریں گے۔ وہ چلتے چلے گئے، جنگل کچھ گھنا ہوتا جا رہا تھا اور اب جو زمین آ گئی تھی اس میں اونچے نیچے ٹیلے تھے اور گھاٹیاں بھی تھیں، کئی نشیبی جگہوں پر پانی بھرا ہوا تھا۔ ایک جگہ بائیں طرف ایک دیوار کی طرح اونچا چلا گیا تھا اور اس کی شکل نیم دائرے جیسی تھی۔ اس کے واسطے میں ایک غار صاف نظر آ رہا تھا جس کے آگے مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس کے سامنے پانی جمع تھا جو زیادہ لمبائی چوڑائی میں نہیں تھا۔ وہ غار دیکھتے ہو؟ ابو جندل نے آگے آگے جاتے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، وہاں شیر رہتے ہیں اور اسے کچھار کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت شیر اندر موجود ہو، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی۔ کیا شیر ہم اتنے آدمیوں پر حملہ کرے گا؟ شمشیر ابلک نے پوچھا۔ اگر بھوکا ہوا تو؟ ابو جندل نے کہا، شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے قریب سے گزر جاؤ تو بھی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس وقت یہ سب اس ترتیب میں جا رہے تھے کہ ابو جندل سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے دونوں لڑکیوں کے گھوڑے تھے، پھر شمشیر ابلک کا گھوڑا تھا اور اس کے پیچھے سپاہی تھے۔ 3 گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ 3 فالتو گھوڑوں کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو جندل ابھی انہیں بتا ہی رہا تھا کہ شیر بھوکا نہ ہوا تو وہ حملہ نہیں کرتا کہ پیچھے سے زبردست آوازیں سنائی دیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک گھوڑا بہت ہی بری طرح ہنہنایا اور اس کے ساتھ ہی گراہٹ سنائی دی تھی۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑا ہی خوفناک منظر نظر آیا۔ ایک دھاری دار شیر نے آخری خالی گھوڑے پر حملہ کر دی تھا اور شیر کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے اوپر سے گھوڑے کی گردن اپنے منہ میں لے رکھی تھی اور اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ گھوڑا ایک سپاہی کے گھوڑے کے پیچھے بندھا ہوا تھا۔ سپاہی کا گھوڑا ڈر کر دوڑ پڑا، لیکن شیر نے اس کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کو بڑی مضبوطی سے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ شمشیر ابلک نے نہایت پھرتی سے اپنا گھوڑا پیچھے موڑا اور ایر لگا دی۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ شمشیر ابلک نے سپاہی کے ہاتھ سے برچی چھین لی اور شیر کے قریب سے گزرتے برچی پوری طاقت سے ماری، جو شیر کی پیٹھ میں اتر گئی۔ گھوڑے کی گردن سے شیر کے دانت اکھڑ گئے اور شیر پیٹھ کے بل گرا۔
शमशीराबलक ने आगे जाकर घोड़ा रोका और पीछे को मोड़ा। शीर एक ही परछी के वार से नहीं मारा करता, जख्मी होकर वो आखिरी वार किया करता है। शीर परछी का जख्म खाकर पीठ के बल गिरा और तेजी से उठा। शमशीराबलक ने बरछी इसकी पीठ से निकाल ली थी। शीर जख्मी हालत में बहुत ही खतरनाक होता है। शीर ने शमशीर इबलिक को अपनी तरफ आते देखा तो इस पर झपटने के लिए दौड़ा, लेकिन एक सिपाही ने अपने घोड़े को मोड़कर उसके करीब पहुंच चुका था। उसने शीर को बरछी मारी जो इसकी गर्दन में उतर गई। इधर से शमशीर इबलिक ने घोड़े को एड़ लगाई और शीर के करीब से गुजरते उसे बरछी मारी। उस वक्त शीर पहलू के बल हो गया था। शमशीर इबलिक की बरछी इसके पहलू में दाखिल हो गई। शमशीर इबलिक ने बरछी खींच ली और आगे जाकर घोड़ा फिर मोड़ा, लेकिन इतने में दूसरे सिपाहियों ने बरछियों से शीर को बेबस कर दी और शीर उठ ना सका। जिस घोड़े पर शीर ने हमला किया था वो ठीक हालत में मालूम नहीं होता था। वो जख्मी भी हो गया था और खौफजदा इतना कि भागने के लिए रस्सी छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अब्बू जंदल ने आकर इसकी रस्सी खोल दी। घोड़ा इतना डरा हुआ था कि एक तरफ सरपट दौड़ पड़ा। घोड़ों के मुताल्लिक तो तुम सब कुछ जरूर जानते होंगे, अबू जंदल ने कहा, लेकिन तुम शायद देख ही नहीं सके कि ये घोड़ा अब हमारे काम का नहीं रहा। इसकी गर्दन की हड्डी अगर टूटी नहीं थी तो हिल जरूर गई थी। तुमने देखा नहीं, घोड़ा गर्दन ऊपर नहीं उठा रहा था और फिर ये इतना डर गया था कि हम उसे साथ रखते तो हमारे लिए मुसीबत बना रहता। जाने दो उसे। घोड़ा था तो खौफजदा ही, लेकिन खौफजदगी की सबसे ज्यादा शिकार वो लड़कियां हुई थीं जो थर थर कांप रही थीं। वो मौत से डरने वाले नहीं थे और अब्बू जंदल ऐसा मर्द था जो इन जंगलों में से अक्सर गुजरा था, और वो डाकू था जो जिंदगी और मौत का खेल ना जाने कब से खेल रहा था। अबू जंदल इन्हें कुछ और आगे ले गया और ऐसी जगह जाकर रोका जहां ऐसा ही एक टेला था और टीले के अंदर किसी ने खुदाई करके चौकोर सा कमरा बना रखा था और ये मुसाफिरों के रुकने और क़याम करने के काम आता था। अब्बू जंदल ने इन्हें बताया कि इस इलाके में से कभी कोई मुसाफिर नहीं गुजरा। काफिलों के रास्ते बहुत दूर थे। इन इलाकों में काफिलों को लूटने वाले ही आया करते थे। वो इस जगह रुक गए और खाना खाने लगे। सूरज गुरूब हो गया और शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में तब्दील हो गया। तब इन्होंने मशलें जलाकर इस गार के सामने जमीन में गाड़ दी। ये मशलें रोशनी के लिए नहीं बल्कि दरिंदों को डराने और इन्हें दूर रखने के लिए बाहर गाड़ी गई थीं। एक बात बताओ अबू जंदल, शमशीर इबलिक ने पूछा, तुमने अपना खजाना ऐसी जगह क्यों रखा हुआ है जहां तक पहुंचने के लिए मौत के मुंह में दाखिल होना पड़ता है? खजाने ऐसी ही जगहों पर रखे जाते हैं, अबू जंदल ने जवाब दिया। अगर इतने ज्यादा ज़रवू जवाहरात और इतनी ज्यादा रकम घरों में रखी जाए या आबादियों के करीब कहीं जमीन के अंदर छुपा दी जाए तो डाकू इससे वाकिफ हो जाते हैं और फिर खजाने के मालिक की जिंदगी 2-4 दिन ही रह जाती है। इसे कत्ल कर दिया जाता है और इसका खजाना कातिल ले उड़ते हैं। पुराने ज़माने की कहानियों में बादशाहों और डाकुओं के मुताल्लिक ये ज़रूर पढ़ा या सुना जाता है कि फलां बादशाह या फलां डाकू ने फलां जगह अपना खजाना दबा कर रख दिया था। उन कहानियों से पता चलता है कि खजाने ऐसी जगहों पर ले जाकर छुपाए जाते थे जहां तक पहुंचना बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता था। बहरी कज़्ज़ाक़ तो अपने खजाने और ही ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाकों में ले जाकर कहीं छुपाया करते थे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी समंदर में गुजरती थी। लौट मार करके कभी कभी खुश्की पर आया करते थे। खजानों के मालिक अक्सर इस जगह तक रास्ते का नक्शा बनाकर अपने पास रखते थे जिस जगह वो खजाना दबाते थे। बाज़ औक़ात मालिक मर जाता और नक्शा किसी और के हाथ चढ़ जाता तो वो इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता था। ऐसे मदफून खजानों के मुताल्लिक पुरस्कार कहानियां भी सुनाई जाती है जो गलत मालूम नहीं होती। आम तौर पर कहानियों से ये पता चलता है कि मालिक खुद या इसके बाद कोई और खजाना निकालने गए तो वहाँ उन पर ऐसी मुसीबत नाजल हुई कि वो मारे गए या आपस में लड़ पड़े और इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दी। इन कहानियों को फर्जी और अफसानवी समझा जाता रहा है और इनमें अक्सर अफसानवी ही हुआ करती हैं, लेकिन अबू जंदल और शमशीर इबलिक की कहानी को तारीख में जो मकाम मिला है इससे साफ जाहिर होता है कि कम अज़ कम ये एक सच्ची कहानी है। इसे हसन बिन सबा के दूर की एक अहम वारदात बनाकर गालिबन इसलिए तारीख में शामिल किया है कि लोग समझ सकें कि मालवू दौलत और औरत की चूका चौंध अच्छे भले मर्द मोमिन को किन रिफतों से गिराकर पसतियों में गायब कर देती है। रात वहां गुजारकर सुबह वो चल पड़े और आधा दिन गुजर जाने के बाद एक सैलाबी नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। अब्बू जंदल ने इन्हें बताया कि वो ऐसे वक्त यहाँ पहुँचे हैं जब नदी में सैलाब आया हुआ है, वरना ये नदी तो बड़ी खूबसूरत और प्यारी है। इसका पानी शफाफ और कम गहरा होता है जिसमें घोड़े तो क्या आदमी भी आसानी से गुजर जाते हैं। ये कहकर अब्बू जंदल ने अपना घोड़ा नदी में डाल दिया। ये फौज का घोड़ा था
जो सैलाब से लड़ता झगड़ता पार चला गया। उसके पीछे बाकी घोड़ों ने भी नदी पार कर ली। नदी इतनी गहरी हो गई थी कि चंद कदम घोड़ों को इसमें तैरना पड़ा था। पार जाकर शमशीर इब्लिक ने अपना घोड़ा अबू जंदल के साथ कर ली। शमशीर भाई, अब्बू जंदल ने कहा, मुझे इन जंगलों में घूमते फिरते और इनमें से रास्ता बनाने का और फिर काफिले लौटकर इन्हीं जंगलों में गायब हो जाने का इतना ज्यादा तजुर्बा है कि मैं हुआ में खतरे की बो सूंघ लिया करता हूँ। मैं इन्हीं जंगलों में से ना जाने कितनी बार गुजरा हूँ। इन खतरों से मैं हमेशा आगाह रहा हूँ, लेकिन यूँ नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। ना कभी किसी बदरू ने मेरा रास्ता रोका था, ना कभी शेर ने हमला किया था। मैं यहाँ नाग भी देखता रहा हूँ और शेर भी और भेड़िए भी, लेकिन मैं यहाँ से हर बार जिंदा गुजर गया हूँ। ये पहला मौका है कि सफ़र की इब्तिदा ही एक बहुत बुरे शुगून से हुई है। फिर एक शेर ने हम पर हमला किया और फिर मासूम सी नदी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस चले जाना चाहिए या इन खतरों में बढ़ते ही चले जाएं? मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं पेशावर कज़्ज़ाक़ हूँ, अबू जंदल ने कहा। पेशावर कज़्ज़ाक़ों के अपने अकीदे और अपने वहम होते हैं। हम पर जब खतरे मंडलाते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि ये खतरा हमें दबोच कर हमें ख़त्म कर देंगे, तो हम एक कुंवारी लड़की की जान की कुर्बानी दिया करती हैं। लेकिन यहाँ मैं ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता। अगर ये 2 लड़कियाँ मेरे मरे भाई की बेटियाँ ना होती तो मैं उनमें से एक की कुर्बानी दे देता। मैं उसे बेहतर ये समझता हूँ कि मंजिल तक पहुँच जाऊँ और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की कुर्बानी दे दूँ। मैं इसलिए खबरदार कर रहा हूँ कि हर वक्त चौकस और चूकने रहना, मालूम नहीं किस वक्त क्या हो जाए। इस जंगल के हुस्न को ही ना देखते रहना। तुमने जिस तरह शेर मार लिया था, इस तरह हर खतरे पर काबू पा लोगे। रात को भी इस तरह बेदार रहना जैसे तुम्हारी एक आंख खली हुई हो। रात को मुझ पर भरोसा ना करना। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं रात हशीश पीकर सोता हूँ और मुझे इस दुनिया की कोई होश नहीं रहती। इस रात इस काफिले ने ऐसी जगह पड़ाव किया कि इन पर चंद एक दरख्तों का साया और ऊपर आसमान था। वो अलग अलग थोड़े थोड़े फासले पर सोए। आधी रात से कुछ पहले शमशीर इब्लिक को एक लड़की ने जगाया। वो हड़बड़ा कर उठा जैसे कोई खतरा आ गया हो। लड़की ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं और वो इसके साथ थोड़ी दूर तक चले। वो उठा और इसके साथ चल पड़ा। चंद कदम दूर इस लड़की की दूसरी बहन एक दरख्त के तने की कोख में बैठी हुई थी। ये दोनों भी उसके करीब बैठ गए। इसका एक हाथ एक लड़की ने और दूसरा दूसरी लड़की ने पकड़ लिया। दोनों लड़कियों ने इसके हाथ चूमे। हमारे चचा से ना डरो, एक लड़की ने कहा, वो हशीश पीकर सोता है और सुबह होश में आता है। हम दोनों सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि हम बाकी उम्र तुम्हारे साथ गुजारेगी। हमें लौनडिया बना कर रख लो, चाहे शादी कर लो, और अगर तुम हमें दाश्ता बना कर रखोगे तो भी हमें मंजूर है। हम अपने चचा को अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद करना चाहती हैं और हकीकत ये है कि तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम दोनों की खातिर तुम्हारे चचा के साथ आया हूँ, शमशीर इब्लिक ने कहा, वरना उस शख्स पर एतबार नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमें एक डर है, दूसरी लड़की ने कहा, तुम्हें जब खजाना मिल जाएगा तो तुम हमें भूल जाओगे। ऐसा नहीं होगा, शमशीराबलक ने कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझे धोखा ना दे जाओ। दोनों लड़कियों ने बड़े ही वालिहाना अंदाज से मोहब्बत का इजहार किया। उनका रवैया ऐसा था जैसे दोनों ने अपना आप इसके हवाले कर दी हो। शमशीराबलक की एक ही बीवी थी जिससे उसके 3 बच्चे थे और इसकी उम्र 40 बरस हो चुकी थी। इस पर तो दोनों लड़कियों ने खुद फरामोशी की कैफियत तारी कर दी। अबू जंदल तो हशीश के नशे में गहरी नींद सोया हुआ था। शमशीराबलक पर उन लड़कियों के हुस्न का और उनकी जवानी का नशा तारी हो गया। इसने चाहा कि बाकी रात ये लड़कियां उसी तरह इसके पास बैठी रहीं और वो उनके नशे में बदमस्त होता चला जाए। इसके जहन में अगर अबू जंदल के खिलाफ कुछ थोड़ा सा शक रह गया था तो वो उन दोनों लड़कियों ने साफ कर दिया। लड़कियां चली गई और शमशीर इब्लिक कुछ देर वहीं बैठा, उन लड़कियों के तिलिस्माती ख्याल में खोया रहा। उससे पहले सफ़र के दौरान ये लड़कियां उसे देख देख कर इस तरह मुस्कुराती रही थीं जैसे वो उसे बहुत पसंद करती हूँ और इसके साथ अलग तन्हाई में बैठना चाहती हूँ। उनका यही अंदाज शमशीर इब्लिक को दीदा बनाए हुए था। मगर अब लड़कियां रात की तारीक तन्हाई में इसके पास आ बैठें और इसके इतना करीब होगी कि वो उनके जिस्मों की बो सूंघ सकता था, तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। कहीं करीब से ही उसे भेड़ियों की लंबी हो की आवाज़ें सुना दें। ये आवाज़ अचानक उठी थी और तमाम भेड़िए एक ही बार बोलने लगे थे। शमशीर इब्लिक बेदारी के ख्वाब से यकलखत हड़बड़ा कर बिल्कुल ही बेदार हो गया और उठ खड़ा हुआ तेज तेज कदम उठाता इस जगह जा पहुंचा जहां वो सोया हुआ था। वहां लेटा और उसने बाकी रात जागते गुजार दी।
सुबह अभी धुंधलकी थी जब ये काफिला जागा और बड़ी तेजी से सामान समेटकर और घोड़ों पर ज़ैन डालकर चल पड़ा। जो सुबह का उजाला निकलता आ रहा था, जमीन के खदोखाल बदलते जा रहे थे, दरख्त बहुत कम हो गए थे और घास भी कम होती जा रही थी और थोड़ी है दूर आगे जमीन ऐसी आ गई जैसे न जाने कितनी मुद्दत से पानी की बूंद को तरस रही हो। दरख्त तो कहीं कहीं नजर आते थे और ये दरख्त बिल्कुल खुश्क थे, जिनकी टहन तो थे लेकिन टहनियाँ नहीं थी। झाड़ियाँ बिल्कुल खुश्क और खारदार थीं। जमीन कटी फटी थी, कहीं जमीन उभरी हुई थी और कहीं नशेब में चली जाती थी और कहीं टीले यूं खड़े थे जैसे जमीन पर गड़े हुए मखनी और भदे और बदसूरत से सुतून हूँ। जमीन पर किसी घोड़े या ऊंट या किसी इंसान का ताज़ा पुराना नक्श पाना था, जिससे पता चलता था कि इधर से कभी कोई नहीं गुजरा और ये पहले इंसान हैं जो इस तरफ आ निकले हैं। ये है सहरा का असल खतरा, अब्बू जंदल ने अपने साथियों को बताया। ना वाकिफ मुसाफिर इन ढेरों में दाखिल हो जाता है और समझता है कि वो उनमें से निकल जाएगा, लेकिन इनके अंदर ऐसी भूल भुलैयां हैं कि बाज मुसाफिर इन ढेरों में से 2-3 के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और समझते हैं कि इन्होंने बहुत फासले तय कर ली है, लेकिन वो वहीं के वहीं होते हैं। हत्ता कि प्यास और फिर भूख इन्हें वहीं गिरा लेती है और रेत उनके जिस्मों से जिंदगी का रस चूस लेती है। मैं उनसे वाकिफ हूँ, इसलिए मैं जब भी इधर आया हूँ दूर का चक्कर लगाकर गया हूँ। अबू जंदल इन्हें एक तरफ ले गया। उस तरफ जमीन ऊपर ही ऊपर उठती जा रही थी। नजर तो यूं आता था जैसे ये जमीन पकी है और पाँव के नीचे मिट्टी है, लेकिन जब पाँव रखते थे तो रेत में धंस जाता था। बुलंदी पर जाकर रेत की उन ढेरियों को देखा तो वो मैल वासत में फैली हुई थी। अबू जंदल अपने काफिले को दूर दूर से निकालकर आगे ले गया। सूरज सर पर आ गया तो आगे यूं नजर आता था जैसे जमीन जल रही हो और इससे शोले उठ रहे हों। उनमें से आगे कुछ नजर नहीं आता था क्योंकि ये शफ्फाफ से शोले झिलमिल करते थे। काफिला जो आगे बढ़ता जाता था, ये झिलमिलाते हुए शोले भी आगे बढ़ते जा रहे थे। प्यास एक कुदरती अमर है। अब्बू जंदल ने पिछले पड़ाव से रवानगी से पहले ही पानी का जखीरा छोटे छोटे मुश्कीज़ों में भर लिया था। हर घोड़े के साथ एक मशकीज़ा बंधा हुआ था। सबने पानी पिया और चलते चले गए। अब्बू जंदल ने इन्हें बताया कि ये रेगिस्तानी खित्ता शाम से पहले ख़त्म हो जाएगा और कुछ ही दूर आगे एक नखलिस्तान आएगा। यहाँ रुककर खाना खाएंगे और थोड़ा सा आराम करके आगे चले जाएंगे। सूरज जब मगरिब की तरफ चला गया तो दूर से खजूर के दरख्त नजर आने लगे। घोड़े प्यास से बेचैन हुए जा रहे थे और थक भी गए थे क्योंकि उनके कदम रेत में धंस रहे थे। आखिर नखलिस्तान आ ही गया। वहाँ पानी का छोटा सा तालाब था और खजूर के दरख्तों की इतनी इफराद के साया ही साया था। हालांकि खजूर के दरख्त का साया बेकार होता है। घोड़े सवारों के उतरते ही पानी की तरफ दौड़ पड़े और पानी पीने लगे। काफिले ने खाना खाया, पानी पिया और थोड़ा सा आराम कर लिया। घोड़े पानी पी चुके थे। ये लोग उठे और घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। घोड़े तो थके हुए लगते ही थे, लेकिन उनके सवारों के चेहरों से पता चलता था कि खजाने का लालच ना होता तो वो वहीं थकन से गिर पड़ते और गहरी नींद सो जाते। उनके जिस्म तो जैसे टूट फूट गए थे। ज्यादा बुरी हालत लड़कियों की थी। अबू जंदल इन्हें अच्छी अच्छी और पर उम्मीद बातें सुनाता जा रहा था ताकि ये लोग जहनी तौर पर बेदार और मुस्तैद रहें। आगे फिर वैसा ही सहरा था, लेकिन कुछ आगे जाकर रेत मिट्टी में तब्दील होने लगी थी और 2-2.5 मील दूर हरे भरे दरख्त नजर आने लगे थे। अबू जंदल आगे आगे जा रहा था। उसने अचानक लगाम खींचकर घोड़ा रोक लिया और एक हाथ बुलंद किया, जिसका मतलब ये था कि सब रुक जाएं। वो घोड़े से कूदकर उतरा और चंद कदम आगे जाकर जमीन पर झुक गया। शमशीर इब्लिक भी घोड़े से उतरा और इस तक पहुंचा। देखो शमशीर, अबू जंदल ने जमीन की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम कह रहे हो कि ये घोड़ों के निशान नहीं? हाँ अबू जंदल, शमशीर इब्लिक ने कहा, ये बिलाशुबा घोड़ों के निशान हैं और ये निशान पुराने नहीं, 1-2 रोज पहले के लगते हैं। अबू जंदल अपने घोड़े पर सवार होकर इस तरफ कुछ दूर तक चला गया। जदुर से ये घोड़े आ रहे थे। खरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे कि घोड़े किधर से आए हैं और किधर गए हैं। अबू जंदल रुक गया। शमशीर इब्लिक भी घोड़े पर सवार होकर इसके पीछे चला गया था। इधर से आम लोग नहीं गुजरा करते, अबू जंदल ने कहा, इधर किसी फौज के घुड़सवार नहीं आ सकते। ये खित्ता सुल्तानों और बादशाहों और अमामों की दुनिया से बहुत दूर है। मैं कहा करता हूँ कि इस खित्ते पर खुदा का कहर बरसता रहता है। इधर से कोई मुझ जैसा कज़्ज़ाक़ और डाकू ही गुजर सकता है। हमें अब ज्यादा होशियार होकर आगे जाना पड़ेगा। वो काफिले के बाकी अफराद को लेकर आगे चल पड़े और सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था कि वो फिर हरे भरे खित्ते में दाखिल हो गए। अबू जंदल और शमशीर इब्लिक रास्ते में जमीन को देखते आए थे कि कदमों के और निशान भी मिलेंगे।
निशान मिले थे लेकिन वो दूसरी तरफ चले गए थे। इन्होंने इस सरसब्ज जगह पर रात को पड़ाव किया। जमीन खुश्क थी और घास बड़ी मुलायम और नरम थी। अब्बू जंदल ने सिपाहियों से कहा कि वो चारों रात को इस तरह पहरा दें कि एक आदमी पहरे पर खड़े रहे और दूसरे बारी बारी पहरा दें। इसने ये भी कहा कि जो भी पहरे पर खड़े हो, इसके पास कमान और तरकश जरूर होने चाहिए। अबू जंदल खतरा महसूस कर रहा था जिसकी निशानदही घोड़ों के उन कदमों के निशानों ने की थी जो उसने देखे थे। खाने के बाद वो कुछ देर बातें करते रहे और जब सोने लगे तो एक सिपाही पहरे पर खड़ा हो गया। उसने एक जगह खड़ा ही नहीं रहना था। इन्होंने ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां आमने सामने दो हरी भरी ठेकरियां थीं और एक टेकरी आगे थी। पहले वाले सिपाही को बताया गया था कि वो अपने पहरे के दौरान इन टेकरियों के पीछे भी जाए और ऊपर जाकर भी देखे और पूरी तरह बेदार रहे। चारों सिपाहियों ने बारी बारी रात भर घूम फिर कर पहरा दिया और सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा। आखिरी सिपाही जो पहरे पर था वो अब एक टेकरी के पीछे था। उसे कालबा मालूम था कि इसके साथी देर से जागेंगे, इसलिए उसने पहरे पर ही रहना बेहतर समझा। इसे टेकरी के इस तरफ जदूर उसके साथी सोए हुए थे। कुछ आवाजें और आहटें सी सुनाई दें। वो समझा कि इसके साथी जाग उठे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता टेकरी के सिरे पर आया जहां टेकरी खत्म होती थी। वहां दो चौड़े तनों वाले दरख्त थे। उसने जब अपने साथियों की तरफ देखा तो वहां कोई और ही मंजर नजर आया। 8 आदमी थे जिन्होंने मुंह और सर सियाह पगड़ियों में लपेट रखे थे। इन्होंने लंबे चुके पहन रखे थे जो उनके घुटनों तक गए हुए थे। 8 घोड़े कुछ दूर खड़े घास खा रहे थे। 2 आदमियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ रखा था और बाकी आदमियों ने तलवारें हाथों में ले रखी थी और हर एक ने तलवार की नोक एक एक आदमी की शहरत पर रखी हुई थी। साफ पता चलता था कि ये कोई डाकू थे जिन्होंने इस काफिले को नींद में दबोच लिया था और इन्हें हथियार उठाने की मोहलत नहीं दी थी। वो लड़कियों को ले जाना चाहते थे, जिसमें कोई शक ही नहीं था। वो अबू जंदल और शमशीराबलद से कुछ पूछ रहे थे। लड़कियां उन दोनों आदमियों की गिरफ्त में तड़प रही थीं। पहरे वाले सिपाही ने अपने कमान में एक तीर डाला। फासिला 20-22 गज होगा। उसने तीर खींचकर जो छोड़ा तो वो एक आदमी की गर्दन में उतर गया। उस आदमी ने एक लड़की को पकड़ रखा था। उसने फौरन लड़की को छोड़ा और अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रखे। सिपाही ने बड़ी तेजी से कमान में दूसरा तीर डाला और जिस आदमी ने दूसरी लड़की को पकड़ा हुआ था इसको निशाने में लेकर तीर छोड़ दिया। उसका निशाना बेखता था। तीर अपने शिकार के गाल के एक तरफ लगा और दूसरी तरफ बाहर हो गया। उसने भी लड़की को छोड़ा और अपने मुंह पर हाथ रख लिए। सिपाही ने उसी तेजी से तीसरा और चौथा तीर चलाया और इसका एक तीर भी खाली ना गया। ये डाकू हैरान हो गए। इन्हें ये तो पता ही नहीं चल रहा था कि तीर किस तरफ से आ रहे हैं। उनकी हड़बड़िंग से काफिले वालों को हथियार उठाने का मौका मिल गया। इधर से जो तीर अंदाजी कर रहा था उसने 5 आदमियों को मार लिया। 3 डाकू बच गए थे। इन्होंने जब देखा कि अबू जंदल, शमशीर, इब्लिक और बाकी 3 सिपाहियों ने तलवार और बरछियां उठा ली हैं तो वो तीनों बहुत तेजी से दौड़ पड़े। उनका ताक़ुब किया गया लेकिन वो कूदकर घोड़ों पर सवार हुए और एरा लगा दी। घोड़े हुआ से बातें करने लगे। इस तरह डाकू अपने 5 साथियों की लाशें और 5 घोड़े छोड़कर भाग गए। मेरे दोस्तू, अबू जंदल ने कहा, हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन मालूम होता है कि कोई और भी हमारी मंजिल के करीब आ गया है। मैं बता नहीं सकता कि अब क्या होगा, लेकिन डरने की भी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता पूरी तरह होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। हर वक्त हथियार पास होना चाहिए और एक हाथ अपने हथियार पर रखोगे तो खतरे की सूरत में बच सकोगे। और तुम दोनों लड़कियां सुन लो, तुम किसी सुल्तान शहजादे के हरम की लड़कियां नहीं हो जिनका काम सिर्फ ये होता है कि अपने आका को खुश रखें। तुम मेरी भतीजियां हो। अपने बाप को याद करो, वो बड़ा जरी और जाबिर मर्द था। तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर कोई खतरा आ पड़ा तो मर्दों की तरह लड़ना है, औरतों की तरह डरना नहीं। ये तो हम नींद में पकड़ी गई थी, एक लड़की ने कहा। मैं नींद से हड़बड़ा कर उठी तो एक आदमी ने मेरे बाजों पीठ पीछे जकड़ दिए थे। अगर हम दोनों बेदार होती और हम पर डाकू हमला करते तो फिर तुम देखते कि हम क्या कर सकती हैं। अब्बू जंदल ने इन्हें कहा कि फौरन कोच करो ताकि हम शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुंच जाएं। सूरज गुरूब होने में अभी 2-2.5 घंटे बाकी थे जब वो उस खित्ते में पहुंच गए जो उनकी मंजिल थी। वो भी बेआबू गया खत्ता था। वो वैसा ही था जैसा ये लोग पहले एक जगह देख आए थे। सेलों वाली गहरी सलीटी रंग की चट्टानें थीं और कुछ ऊंची पहाड़ियां भी थीं और पथरीली टेकरियां भी थीं, लेकिन वहां घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी। यूं लगता था
जैसे उन चट्टानों और पहाड़ियों से आग की तरह सूरज की तपिश खारिज हो रही हो। हवा बहुत ही तेज चल रही थी, जो तेज ही होती चली जा रही थी। ये जब सेलों वाली चट्टानों से टकरा कर गुजरती थी, तो हल्की हल्की चीखें सुनाई देती थीं, जो इंसानी चीखों जैसी थीं। कभी तो यूं लगता था जैसे औरतें और बच्चे उन पहाड़ियों के अंदर कहीं किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं और चीख चला रहे हैं। ये खत्ता भी बदरूहों का मसकन लगता था। ये सारा माहौल दिल पर घबराहट और खौफ का तासुर पैदा करता था, लेकिन अब्बू जंदल का चेहरा पुरसुकून था और इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो यहाँ जरा सी भी अजनबीत महसूस ना कर रहा हो। अब जरा होशियार रहना शमशीर इब्लिक, अबू जंदल ने कहा। हमें इधर इधर घूम फिरकर और अच्छी तरह देखभाल करके अंदर जाना चाहिए था, लेकिन इतना वक्त नहीं। रात आ गई तो मशलों के बावजूद हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम सबको सीधा अंदर ले जा रहा हूँ। अब जो होता है होता रहे, मुकाबला करेंगे। बात जरा साफ करो अबू जंदल, शमशीर इब्लिक ने कहा। वो खतरा है कैसा जो तुम महसूस कर रहे हो? मुझे अल्फाज में बता दो, ताकि मैं उसके मुताबिक खुद भी तैयार रहूं और अपने उन सिपाही साथियों को भी तैयार रखूं। आसमान से कोई आफत नहीं गिरेगी, अबू जंदल ने कहा। ये खतरा इंसानों का ही होगा। वो जो 3 आदमी जिंदा निकल गए थे, वो कहीं दूर नहीं चले गए, यही कहीं होंगे और वो यहाँ आ सकते हैं। आने दो, शमशीर इब्लिक ने कहा। आने दो इन्हें, अब हम सोए हुए नहीं होंगे, चलो आगे। अबू जंदल आगे आगे था। वो चट्टानों की भूल भलियों में दाखिल हो गया। बाकी सब पीछे एक कतार में जा रहे थे। अब उनके पास फालतू घोड़े साथ थे। वो डाकुओं के घोड़े भी अपने साथ ले आए थे। अबू जंदल कभी दाएं मरता, कभी बाएं मरता, और ये लोग भूल ही गए कि वो किधर से आए हैं और कितने मोड़ मुड़ चुके हैं। सिर्फ अबू जंदल रास्ते से वाकिफ था और इसे ये भी मालूम था कि वापस किस तरह आना है। वहाँ अंदर छोटी बड़ी बेशुमार चट्टानें थीं, उनके साथ ऊंची पहाड़ी थी। हुआ की चीखें और बुलंद हो गई थीं। आखिर जगह ऐसी आ गई कि दाएं तरफ ऊंची पहाड़ी थी और इसके दामन में जरा हटकर लंबी चट्टान थी और इनके दरमियान घोड़े गुजरने के लिए कुछ जगह थी। 50-60 गज आगे ये चट्टान पहाड़ी के दामन से मिल जाती थी और वहाँ एक बड़ी बुलंद चट्टान ने रास्ता रोक लिया था। अब्बू जंदल आगे ही आगे बढ़ता गया और वहाँ तक पहुँच गया जहाँ रास्ता बंद हो जाता था। वो घोड़े से उतरा और सबको उतरने के लिए कहा, और ये भी कि घोड़े यहीं छोड़ दें। आगे देखा कि ये रास्ता इस तरह नीचे को चला गया था जिस तरह किसी की इमारत के तहखाने में सीढ़ियां उतरती हैं। अब्बू जंदल ने सिपाहियों से कहा कि वो मशलें जलाकर नीचे आ जाएं। वो शमशीर इब्लिक और लड़कियां नीचे उतर गई और सिपाहियों ने मशलें जलाई और उनके पीछे पीछे नीचे चले गए। वो 8-10 गज नीचे चले गए। ये तहखाने की तरह बना हुआ एक गार था जिसकी छत 20-25 गज ऊंची थी और ये गार बहुत ही कुशादा था। गार की छत से चट्टानों के लंबूतरे और अजीब वो गरीब टुकड़े लटक रहे थे। जून ही मशलें अंदर दाखिल हुए, बड़ी ही जोर से ऐसी आवाज आई जैसे तूफान आ गया हो, और इसके साथ चिड़चिड़े की आवाजें आएं जो एक शोरगुल की तरह बुलंद होती चली गईं। ये चमगादड़ थे जो गार के अंदर से उड़कर बाहर निकल गए थे। ये चंद एक नहीं बल्कि सैकड़ों थे। अब्बू जंदल ने बुलंद आवाज से अपने साथियों से कहा कि ये चमगादड़ हैं, उनसे डरे नहीं। इस गार के फर्श पर भी चट्टानें थी जिसकी ऊंचाई 2 गज या 3 गज थी। मशलों की रोशनी में एक तरफ एक और गार का दहाना सा नजर आया। अबू जंदल इसमें दाखिल हो गया। ये दहाना तो इतना कुशादा नहीं था, लेकिन अंदर जाकर देखा गार खासा कुशादा होता चला जा रहा था। मशलों की रोशनी खासी ज्यादा थी और अंदर कंकरियां भी नजर आ रही थीं। 25-30 कदम गए होंगे कि आगे एक और दहाना नजर आया। अबू जंदल इसमें दाखिल हो गया और अब ये लोग एक और गार में चले गए थे। अबू जंदल ने कहा कि मशलें आगे ले आओ। मशलें आगे गए तो सब ने देखा कि वहाँ 3 बकस रखे हुए थे जो लकड़ी के बने हुए थे और इन पर लोहे की मजबूत पतरियां चढ़ी हुई थीं। ये लो शमशीर भाई, अब्बू जंदल ने कहा, यह है मेरे बाप की और मेरी कमाई खजाना, अब सिर्फ मेरा नहीं हम सबका है। उसने सिपाहियों से कहा मशले लड़कियों को दे दें और ये बकस उठाएं। सिपाही आगे बढ़कर एक बकस को उठाने लगे तो शमशीर इब्लिक ने कान खड़े कर लिए और अबू जंदल से कहा कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी है। अब्बू जंदल ने उसे कहा कि इसके कान बज रहे हैं, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। अबू जंदल अभी ये बात कह ही रहा था कि गार में आवाज आई, इन संदूकों से पीछे हट जाओ। सबने चौंक कर इधर देखा। एक आदमी जिसने मुंह और चेहरा काले रंग की पगड़ी में लपेट रखा था, हाथ में तलवार लिए खड़ा था। सबने तलवारें निकाल लें। देखते ही देखते गार में 10-12 आदमी आ गए। उन सब के सर और चेहरे काली पगड़ियों में लिपटे हुए थे, सबके हाथों में तलवारें थीं।
सब पीछे खड़े रहो दोस्तों। अबू जंदल ने आगे बढ़कर इन डाकुओं से कहा, तुम जिंदा उन संदूकों तक नहीं पहुंच सकोगे और जब तक हम जिंदा हैं उन संदूकों को हाथ तक नहीं लगा सकोगे। अबू जंदल, काली पगड़ी वाले एक आदमी ने कहा, तुम भी हम में से हो और हम तुम्हें जानते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे हाथों मरो। ये संदूक और 2 लड़कियां यहीं छोड़ जाओ और खुद को और अपने साथियों को जिंदा ले जाओ। ओ ये तुम हो? अबू जंदल ने इस आदमी को पहचानते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि तुम सब मारे गए हो या किसी और तरफ निकल गए हो। ना तुम हमारे हाथों मरो, ना हम तुम्हारे हाथों मरना चाहते हैं। उन संदूकों में जो कुछ है आओ बराबर बराबर बांट लेते हैं। ये माल इसका है जिसके पास ताकत है। काली पगड़ी वाले ने कहा, हम तुम्हें बातों का वक्त नहीं देंगे, हम सारा माल ले जाने आए हैं। अब्बू जंदल ने शमशीर इब्लिक को इशारा किया और उसके साथी इन दोनों ने और 4 सिपाहियों ने और लड़कियों ने भी डाकुओं पर हमला कर दी। डाकू तैयार थे, वो तो लड़ने और मरने के लिए आए थे। फिर इस गार में तलवार टकराने की आवाज़ें आती रहीं, जख्मी गिरते रहे, खून बहता रहा, मुशालें ज़मीन पर पड़ी जल रही थीं। 2-3 जख्मी जलती मशलों पर गिरे और उनके कपड़ों को आग लग गई। वो उठकर इधर इधर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकाम रहे। वो पहले ही जख्मी थे, फिर कपड़े जलकर उनके जिस्मों को जलाने लगे तो वो जल्दी ही बेहोश होकर गिर पड़े। इतने में 3-4 और जख्मी मशलों पर गिरे और उसी अंजाम को पहुँचे। लड़ने वाले लड़ते लड़ते मशलों पर आए तो उनके कपड़ों को भी आग लग गई। गार में अगर किसी को फतह हासिल हुई तो वो आग की हुई। अंदर आग के शोले थे और गार धुएं से भर गया था। कुछ तो तलवारों के जख्मों से मर गए और जो जख्मों से ना मरे इन्हें मशलों की आग ने मार डाला और थोड़ी देर बाद गार में सिर्फ शुलूं की हल्की आवाज़ आ रही थी। काफिलों से लूटा हुआ खजाना मौत के हाथ आया।